Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 6 Mughal Empire, Golden Age and Downfall from class 7th SS semester 2. Art and literature of Mughal period. The Mughal rulers were very fond of grand palaces. Hindu style of architectural decoration merged with Islamic style of constructing palaces and domes. Shah Jahan built many renowned monuments and is known as the constructor of palaces. He also patronized many artists and so encouraged art. The Rajput rulers were very fond of paintings and so patronized the art of painting. Jahangir too was fond of collecting paintings. तो मुगल शासकों को भव्य महलों का बहुत ज़्यादा शौक था। महलों और गुंबदों के निर्माण की इस्लामी शैली के साथ स्थापत्य सजावट की हिंदू शैली भी उसमें मर्ज हो गई थी। शाहजहां ने कई प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किया और उन्हें महलों का निर्माता कहा जाता था। उन्होंने कई कलाकारों को संरक्षण दिया और कला को प्रोत्साहित किया। राजपूत शासक चित्रों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और इसलिए उन्होंने चित्रकला की कला को संरक्षण दिया। जहांगीर को भी चित्रों को इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक था। The Mughal era is considered to be a peaceful period on the whole. It was a favorable time for the development of literature and Sanskrit books were translated. Historical volumes were written and Hindi literature received patronage. The dohas of Kabir and Rahim and Saki became famous. Rakshan, a disciple of Vaishnav Acharya Vitthal Nath Ji, composed Hindi poetry. Many foreign travelers came to India during this period. They have described the state administrative system and the common life of the people in their travelogues. Two French travelers, that is Tavernier and Bernier, visited India during the time of them. Bernier lived in India for 12 years. He has observed that Mughal rulers used to spend a great sum of the army. He has also mentioned appreciatively that Indian textiles were very famous in the markets of Europe and Asia. तो मुगल युग को पूरी तरह से शांतिपूर्ण काल माना जाता है। साहित्य और संस्कृत पुस्तकों के विकास के लिए अनुकूल समय का अनुवाद किया गया। ऐतिहासिक खंड लिखे गए थे इस समय में और हिंदी साहित्य को संरक्षण मिला था। कबीर और रहीम के दोहे और साखी प्रसिद्ध हुए थे। वैष्णव आचार्य विट्ठल नाथ जी के एक शिष्य रस खान ने हिंदी कविता की रचना की। इस दौरान कई विदेशी यात्री भारत में आए थे। उन्होंने राज्य के प्रशासनिक तंत्र और लोगों के आम जीवन को अपनी यात्रा के ट्रैवलॉग में वर्णित किया है। उस दौरान दो फ्रांसीसी यात्री, एक तो ट्रेवेनियर और दूसरा बर्नियर, भारत में आए थे। उनमें से बर्नियर 12 वर्षों तक भारत में रहे। उन्होंने देखा कि मुगल शासक सेना पर बहुत खर्च करते हैं। उन्होंने ये भी सराहना की भारतीय वस्त्र यूरोप और एशिया के बाजारों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। डाउनफॉल. Shahjahan's reign can be considered as golden age of the Mughal Empire. One can say that the downfall of the Mughal Empire started in the later years of Shah Jahan. Aurangzeb policies too proved fatal. Aurangzeb struggled continuously. Among this, the conflicts with the Veer Durgadas in the north and the Maratha Kesari Shivaji in the south are noteworthy. अब हम बात कर रहे हैं डाउनफॉल की, यानी कि मुगल शासन के पतन की। तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। कोई ये कह सकता है कि शाहजहां के बाद के वर्षों में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। औरंगजेब की नीतियां भी घातक साबित हुई थी। औरंगजेब लगातार संघर्ष करता रह रहा था। इनमें उत्तर में वीर दुर्गादास और दक्षिण में मराठा केसरी शिवाजी के साथ इनके जो संघर्ष है वो काफी ज्यादा उल्लेखनीय है। Next is Veer Durgadas. After the demise of the king of Jodhpur, his queen and her son were under the threat of the Mughal rulers. Veer Durgadas sheltered them at a safe place. After that, with the help of loyal soldiers, he protected Malwa's independence for 25 years. Aurangzeb was unsuccessful in dealing with their strategy of launching surprise attacks and had to ultimately reconcile with the Rajputs. तो हम वीर दुर्गादास के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। और जोधपुर के राजा के निधन के बाद उनकी जो रानी थी और उनके बेटे मुगल शासकों की धमकी के अधीन थे। वीर दुर्गादास ने उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर शरण दी थी। उसके बाद वफादार सैनिकों की मदद से उन्होंने 25 वर्षों तक मारवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की।
औरंगजेब ने आश्चर्यजनक हमले शुरू करने की अपनी जो रणनीति थी उससे निपटने में वो असफल रहा और अंततः राजपूतों के साथ सामंजस्य स्थापित उसको करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी, यानी कि जो शिवाजी थे उनका जो राज्याभिषेक की जो विधि है वो यहाँ पे चल रही है। छत्रपति शिवाजी। As a consequence of Aurangzeb's policy, many kingdoms revolted against him. Maratha's kingdom was one amongst them. The Maratha Sardars, that is chieftains, who worked for the Bahmani sultans, enjoyed jagirs, that is large land holdings. But the need to establish an independent and strong Maratha kingdom arose with the emergence of Shahji Bhosle, the brave and capable leader. Later, Shivaji Maharaj, his son, took over the mantle of the Maratha kingdom. तो औरंगजेब की नीति के परिणाम स्वरूप कई राज्यों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। मराठा राज उनमें से एक था। मराठा सरदार जिन्होंने बहमनी सुल्तानों के लिए काम किया था, उन्होंने जागीर यानी जो बड़ी जमींदारी है वो उसका आनंद लिया, लेकिन एक बहादुर और योग्य नेता शाहजी भोसले के उदय के साथ एक स्वतंत्र और मजबूत मराठा राज्य स्थापित करने की आवश्यकता पैदा हुई। बाद में उनके बेटे शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान जो है उसको संभाल लिया था। Shivaji Bhosle was born in 1627 CE in the Shivneri fort. He was raised by his mother Jijabai and mentor Dadoji Kondev. He dreamt of establishing a small and an independent kingdom at Pune. He inherited his self-respect, fearlessness and brilliance from his mother and learned the intricacies of administrative policies from his grandfather. He was fortunate enough to have a good friend like Tanaji. Gradually, he expanded his army and at the tender age of 16, he started capturing forts. Torna, Chakkan, Singhad, Purandar were some of the forts captured by him. Shivaji was coronated in 1674 CE. After several confrontations with the sultans of Bijapur and the Mughals of Delhi, he worked hard to establish a smooth and efficient administrative system. He formed a cabinet of 8 ministers for the proper administration of the state. अब शिवाजी भोसले का जन्म 1627 ई में हुआ था, शिवनेरी किले में हुआ था। उनकी परवरिश उनकी माँ जीजाभाई और संरक्षक दादोजी कोंडदेव ने की थी। उन्होंने पुणे में एक छोटा और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सपना देखा था। उन्हें अपनी आत्मसम्मान, निडरता और प्रतिभा अपनी माँ से विरासत में मिली और अपने दादा से प्रशासनिक नीतियों की पेचीदगियों को उन्होंने सीखा था। वो सौभाग्यशाली थे कि उनका एक अच्छा दोस्त था जैसे तानाजी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया और 16 साल की कम उम्र में उन्होंने किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तोराना, चाकण, सिंहगढ़, पुरंदर उनके द्वारा कब्जा किए गए कुछ किले थे। तो बीजापुर के सुल्तानों और दिल्ली के मुगलों के साथ कई टकरावों के बाद 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। सुचारू और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने राज्य के उचित प्रशासन के लिए 8 मंत्रियों को एक उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया। एंड ऑफ मुगल रूल। द मुगल आर्मी वॉज टायर्ड ऑफ वेजिंग war against the Maratha in the south for 25 long years. At last, Aurangzeb decided to retreat towards the north. He had also become old by that time. After his demise, the decline of Mughal empire began. Struggle for the throne broke out. There was no capable ruler who could keep everybody together. Aurangzeb's narrow-minded policies were responsible for the end of the Mughal empire. The Mughal Empire, which was established in 1526 CE, started declining from 1707 CE. The empire set up by Babur extended over most of India in Aurangzeb's time, and during his reign itself started declining. Discuss about the Mughal Empire on the basis of the points given in box 6.7. तो अब हम मुग़ल जो शासन है उसके पतन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके एंड के बारे में बात कर रहे हैं। मुगल सेना दक्षिण में 25 वर्षों तक मराठों के खिलाफ युद्ध छेड़ने से थक गई थी। अंत में औरंगजेब ने उत्तर की ओर पीछे हटने का फैसला किया। वह भी उस समय तक वो बूढ़े हो गए थे। उनके निधन के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। सिंहासन के लिए संघर्ष छिड़ गया। कोई सक्षम शासक नहीं था जो हर किसी को साथ रख के शासन कर सके।
मुगल साम्राज्य के अंत के लिए औरंगज़ेब की संकीर्ण सोच, यानी कि जो उसकी नैरो माइंडेड जो सोच थी और उसकी जो नीतियाँ उसने बनाई थी, वो जिम्मेदार थी। 1526 में स्थापित मुगल साम्राज्य 1717 ईस्वी में गिरना शुरू हो गया था। बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य को औरंगज़ेब के समय में भारत के अधिकांश हिस्सों में विस्तारित किया गया था और अपने शासनकाल के दौरान ही उसमें गिरावट शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे जो फिगर 6.6 दिया है, इसमें दिए हुए प्रश्नों के आधार पर मुगल साम्राज्य के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।